एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ 20, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करੈ आनंदो सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै त अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ ਫਰੀਦਾ
हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। सारे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। गली असी चंगिया आचारी बुरिया, मनो कुसुदा कालिया बाहर चिटविया। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों हम अमृत वेले उठकर भी, नाम जप कर भी, गुरु नानक के दर पर आकर भी अपनी झोली नहीं भरवा पाते? क्यों? बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन याद कर लिया कीजिए कि कमाई करनी मुश्किल है, नाम जपना मुश्किल है, पर उसको संभालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब करके गंवा लेते हैं और सब सुन चुके हैं कि गंवाने का सबसे जो मेन कारण है वो है निंदा। अमृत वेले उठे, 2.5 घंटा सिमरन किया, कीर्तन सुना, बाहर जाकर 10 मिनट किसी की निंदा कर ली, सारा कुछ गवा लिया। महापुरुषों के वचन खाली के खाली रह जाते हैं। निंदा के बाद बारी आती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, कभी ये नहीं मांगना गुरु से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो जाए, नहीं, बस में आ जाए, बस में। इन सब की जरूरत होती है, पर कहाँ इस्तेमाल करना है, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। ये पता होना चाहिए। आज का प्रकरण है क्रोध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से आज क्रोध को चुना कि क्रोध क्या होता है, क्रोध को काबू में कैसे लाया जा सकता है गुरबाणी के आधार पर, क्रोध को कैसे जीतें, महापुरुषों के क्रोध के बारे में क्या विचार है और गुरबाणी हमें क्या समझाती है कि अपने मन की अवस्था कैसे रखें
कि क्रोध ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह बैठा होता हूँ ना कीर्तन करने के बाद, तो 2-3 लोग जरूर आते हैं रोज कि मेरा बच्चा बड़ा क्रोधी है, बाबा जी कुछ नाम दीजिए। क्रोध बहुत आता है, मैं उनको क्या कहूँ, मुझे ही बहुत आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रकरण लेने का कारण ही ये है कि जब आप लोगों को समझाऊंगा तो मुझे खुद को भी शर्म आएगी और मैं भी शायद क्रोध पे कंट्रोल कर सकूं। क्रोध आना एक और बात है, क्रोध ना आना एक और बात है, पर क्रोध आने के बाद उसे काबू में कर लेना, इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले इस बारे में विचार करेंगे कि क्रोध होता क्या है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कहा करते थे, मस्कीन जी, कि 2 प्रकार के पागल होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं परमानेंट पागल, एक होते हैं टेम्परेरी पागल। हम जितने यहां बैठे हैं ना, सब टेम्परेरी पागल हैं। सच है, ये मस्कीन जी के वचन है, महापुरुषों के। पागलपन क्या होता है? हर आदमी को क्रोध आता है, महापुरुषों तक को क्रोध आता है, पर महापुरुषों का क्रोध ऐसा होता है जैसे समुद्र में लहर उठती है ना, और उसी वक्त मिट जाती है। सेकंडों का क्रोध होता है। गुस्सा आया किसी बात पर अंदर सिमरन इतना होता है कि उसी वक्त शांत हो गया। हम लोगों में गुस्सा इस प्रकार होता है जैसी जिसकी अवस्था। किसी का गुस्सा 2 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का 5-5 दिन नहीं जाता। और जिनका गुस्सा परमानेंट रह जाए ही ना, वो पागल हो जाते हैं। पागल खाने में जो पागल होते हैं उनका गुस्सा परमानेंट है। समझो किसी को गुस्सा आया, खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं रहता। उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है कि किसी का नुकसान कर देगा। वो होते हैं परमानेंट पागल। हम लोग हैं टेम्परेरी पागल। इसका भाव समझिए। जब आदमी को क्रोध आता है तो वो पागल हो जाता है, उसका मतलब है उस पे पागलपन सवार हो गया। एक पागल रास्ते से जा रहा हो, आपको गाली दे दे, आप उसकी बात का बुरा मानोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो पागल है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। तो महापुरुष वचन किया करते थे, जब कोई क्रोध में आपसे कुछ कहे तो उसकी बात का बुरा मत माना करो, क्योंकि उस वक्त वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। क्रोध का मतलब ही है पागलपन। अगर शांति में आपसे कोई गाली दे तो उसको सीरियसली लो, पर अगर क्रोध में आपसे कोई कितना भी बुरी बात कह जाए उस बात पर ध्यान मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है क्रोध क्या है? और 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन के 100 मन लकड़ी पड़ी हो, उसे जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। इसी प्रकार किसी ने लाखों पुण्य कमा लिए हों, क्रोध करके किसी का हृदय दुखा दे, मानो सारे पुण्यों को जला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए क्रोध से बचना बहुत जरूरी है। अभी क्रोध के स्वभाव को समझे। क्रोध होता क्या है? क्रोध कभी भी हारने वाले को आता है, जीतने वाले को नहीं। जीतने वाला क्यों क्रोध करेगा? जो जीत गया वो क्यों क्रोध करेगा? क्रोध हारने वाला करता है, क्रोध का स्वभाव। दूसरा, आदमी को क्रोध किसी पर भी आया हो, निकलता अपने से कमजोर पर ही है, अपने से ताकतवर पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पागलपन की हालत में भी उसका इतना दिमाग जरूर काम करता है कि ये मुझसे ताकतवर है, ये मुझसे कमजोर। एक दृष्टांत, एक आदमी, एक सेठ अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, खाना खा रहा है। अचानक उसे किचन में बर्तन टूटने की आवाज आती है, तो बिना देखे वो नौकर को गालियां देना शुरू कर देता है कि इतने बर्तन तोड़ दिए, इसके पैसे कौन भरेगा, ये वो फलाना बोलते जा रहा है, गालियां देते जा रहा है।
इतने में बीवी बाहर आती है, बर्तन मुझसे टूटे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब चुपचाप खाना खाने लग जाता है। अब बीवी से कौन पंगा ले। अब क्रोध कहां गया? क्रोध था पर निकला किस पे? कमजोर पे। ये क्रोध का स्वभाव है। हम इस वक्त ये समझ रहे हैं कि क्रोध होता क्या है, क्रोध का स्वभाव क्या है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर क्रोध को काबू में ना किया गया, ये जबान अगर दो शब्द ऐसे बोल दे, दुश्मन दोस्त दुश्मन बन जाता है। अगर कड़वे बोल निकल जाए इस रसना से, और इसी रसना से अगर मीठे बोल निकल जाए, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। ये बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन। इसीलिए कहते थे क्रोध जब भी निकलता है ना, पहले पहले रसना के रूप से बाहर निकलता है, जबान से। हाथ पांव बाहर में चलते हैं, पहले जबान चलती है। इसीलिए कहते थे कि जब विचार मन में आए ना, वहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दो। वो कैसे करते हैं? आओ दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। नानक फिक्के बोलिए, तन मन फिक्का हो। फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सो। क्रोधी इंसान का शरीर रोगों से गल जाता है। वाणी कहती है नानक फिक्का बोलिए। फिक्का का भाव है कड़वे वचन। जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं क्रोध में, उनका शरीर गल जाता है। वाणी इसे प्रमाणित करती है। नानक फिक्का बोलिए, तन मन फिक्का होए। काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टाले। कि ये काम और क्रोध एक काम करते हैं कि जिस प्रकार सोने को पिघालना होता है ना, जब उसके ऊपर थोड़ा सुहागा डाला जाता है, उसी वक्त पानी में बदल जाता है, वो पिघल जाता है। जिसके शरीर में क्रोध बार बार आए, कंट्रोल ना कर पाए, उसका शरीर भी इसी प्रकार पिघल जाता है। वाणी कह रही है, गुरु साहब जी कह रहे हैं, काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टाले। इससे बचने का एक ही तरीका है। क्रोध कब आता है इंसान को? जब इंसान को लगता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू अपनी मत बदल ले। हर इंसान को दूसरे की पीठ तो दिखाई देती है, अपनी पीठ नहीं दिखाई देती। दूसरे की बुराई दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती। तू अपने मन की सोच बदल ले, अपनी बुराई देख और दूसरे की अच्छाई देख। जिस दिन तेरी ये अवस्था हो जाएगी, तुझे क्रोध आना बंद हो जाएगा। शब्द क्या पढ़ रहे हैं? हम नहीं चंगे, कि हम अच्छे नहीं हैं। ये गुरु नानक पातशाह का शब्द है, उच्चारण किया हुआ, कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। मन की जिस दिन ये अवस्था बन गई कि हे पातशाह, कि मेरे से बुरा कोई नहीं और बाकी सबसे अच्छा कोई नहीं, उस दिन तुझे क्रोध आना बंद हो जाएगा। पर सच में ये अवस्था मिल जाए, आओ सारे मिलकर मांगो गुरु नानक से। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। अंतर वसे न बाहर जाए, अमृत छाड़ काहे बिख खाए। अंतर वसे न बाहर जाए, अमृत छाड़ काहे बिख खाए। अमृत छाड़ काहे बिख खाए। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। ओ हम
नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई प्रणवत नानक तारे सो। महापुरुषों के वचन, जो पाप हम बाहर कमाएंगे, मानो क्रोध किया, किसी का हृदय दुखा दिया, मन में पश्चाताप आया, यहाँ पर गुरु नानक के चरणों में आए, माफी मांगी, गुरु नानक बख्श दिया, बख्श देता है गुरु नानक, वो बख्शनहार है। ध्यान देना, बाहर हमने क्रोध किया, हमारा लेख बन गया कि हमने क्रोध किया, किसी का हृदय दुखा दिया। गुरु नानक पातशाह के चरणों में आए, अमृत वेले गुरु नानक से अरदास करके माफी मांगी, गुरु नानक ने बख्श दिया। पर जो लोग यहां पर आकर किसी का हृदय दुखाएंगे, गुरु नानक के दर पर आकर, वो कहां जाके बख्शाएंगे? महापुरुषों के वचन, जो बाहर पाप किए हैं गंगा में जाकर धो लोगे, जो पाप गंगा में जाकर करोगे वो कहां जाकर धोगे? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो साखी याद कीजिए, भाई कीर्ति वाली, शॉर्ट में सुना देता हूं क्योंकि बहुत सारी संगत नई भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब के किले में विराजमान हैं। एक मदारी आता है रिछ को लेकर कि पातशाह तमाशा दिखाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं चल दिखा ले। रिछ नाच रहा है, तमाशा दिखा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चौर कर रहा है भाई कीर्तिया, चौर साहब कर रहा है, वो भी बड़ी जोर जोर से हंस रहा है रिछ को देखकर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई कीर्तिया से पूछते हैं तुझे पता है ये रिछ कौन है? भाई कीर्तिया कहने लगा पातशाह मैं क्या जानूं। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे भाई कीर्तिया ये तेरा पिता भाई शोभा राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई कीर्ति ने चौर से रख दी। कहने लगा पातशाह मेरे पिता ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के 9वें गुरु नानक के दिन रात सेवा की, कई साल साथ में जीवन गुजारा। उनके एक बार उनके कोई दर्शन कर ले नरकों में नहीं जा सकता गुरु नानक के। और मेरे पिता ने तो सारी जिंदगी सेवा में बिताई है गुरु नानक की, फिर उनका जन्म रिछ का कैसे हुआ? अगर यही हाल है तो इस दर पे कोई भी सेवा नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे पूछ तो सही इसको रिछ का जन्म क्यों मिला? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से साखी सुनाई कि तेरे पिता भाई शोभाराम का स्वभाव बड़ा क्रोधी था, संगत से बड़े कड़वे वचन बोलता था, प्यार से बात नहीं करता था संगत से। गुरु साहब जी ने कई बार समझाया विच संगत हर प्रभ वस्या जियो, कि संगत में मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे वचन नहीं। पता नहीं किसी का हृदय दुख जाए, किसी के मन से बसीस निकल जाए, बच के रहना चाहिए। पर तेरे पिता ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। एक दिन तेरे पिता करा प्रसाद की देग बरता रहे थे। एक आदमी जिसे प्राप्ति हो चुकी थी, सहज अवस्था की, बड़ी ऊंची अवस्था का मालिक था, वो आया। बाहर उसकी बैलगाड़ी चल रही है, रास्ते में छोड़कर आया, बैलगाड़ी चलते जा रही, वो भागा भागा आया, गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में माथा टेका और प्रसाद लेने चला गया और कहने लगा शोभा राम मुझे प्रसाद का किनका पहले दे दे, मेरा गड्ढा चला जा रहा है। तेरे पिता ने गुस्से से उल्टा सीधा कोई जवाब दे दिया, पर वो चुप रहा। 2 बार 3 बार जब उसने कहा मेरा गड्ढा चल रहा है, ध्यान देने वाला कोई नहीं, मुझे पहले दे दे, तो तेरे पिता ने कड़वे बोल बोले क्यों रिच्छों के जैसे ऊपर आ रहा है, और हाथ ऐसे किया क्यों रिच्छों के जैसे ऊपर आ रहा है। जब उसने हाथ ऐसे किया, उसके हाथ में कड़ा प्रसाद लगा था, वो नीचे गिर गया। उस सिख ने वो कड़ा प्रसाद का किनका अपनी रसना से लगाया, आंखों में आंसू भर आए, हृदय दुख गया, कहने लगा रिछ तो तू है जिसे इतना नहीं पता कि संगत में बात कैसे करते, और कहकर चला गया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मोहे। अगर मैं किसी को बांध दूं मेरे भगत छुड़ा सकते हैं, पर मेरा भगत किसी को बांध दे मैं नहीं छुड़ा सकता। उस सिख के हृदय से बसीस निकल गई कि रिछ है तू, इसे रिछ का जन्म लेना पड़ा। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है कि संगत में आकर हमने अगर क्रोध पर काबू नहीं किया, बाहर किया, उसकी गुरु नानक उसे बख्श देगा। पर संगत में आकर अगर क्रोध किया, किसी का हृदय दुख गया, किसी के हृदय से बसीस निकल गई, तो फिर माफी नहीं मिलेगी गुरु नानक से साथ संगत। इस बात को ध्यान से विचारो।
ये साखी दास बार बार सुनाता है, क्योंकि कभी संगत आती है दास के पास कि सेवादार बुरी तरह से बोलते हैं, कभी सेवादार आते हैं कि संगत बुरी तरह से बोलती है। ये ख्याल दोनों को रखना है, जो गलती करेगा सजा उसे मिलेगी। गुरु नानक बख्शन हार है पर विच संगत हर प्रभ वस्य जियो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे 84 लाख जोनियां नहीं भटकनी पड़ी पर इसे, क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर साहब जी की संगत की थी, सेवा की थी, एक ही जन्म में छुटकारा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देख खाई, वही कड़ा प्रसाद उस रिच को खिलाया, उसके प्राण निकाल दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन कि अपने को मन को समझाने के लिए गुरबानी से बड़ा कोई आश्रय है ही नहीं। गुरबानी की ये पंक्तियां श्रवण कीजिए। सच कहता हूँ साध संगत जी, ये पंक्तियां दास पिछले 15 सालों से पढ़ता चला आ रहा है। जब भी मन उदास होता है ना, इन पंक्तियों में बहुत शक्ति है। मन को एक आसरा मिलता है, एक ज्ञान मिलता है कि तू जो कर रहा है सब व्यर्थ है। श्रवण कीजिए। जा रहना नाही ऐत जग ताकायत गारब हंडिए, मंदा किसे न आखिए पर अखर हो बुझिए, मुँह रखे नाल न लुझिए, मुँह रखे नाल न लुझिए। जब भी किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, क्रोध आ जाए, तो क्या कहते हैं हम? हमारा झगड़ा हो जाए किसी से कि अब मैं इसको दिखाता हूं, मन में यही कहते हैं ना, अब मैं इसे दिखाता हूं और लोगों को भी दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी के मन की अवस्था बता रहा हूं, मेरे समेत हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, अब मैं इसको दिखाता हूं कि मैं क्या हूं और लोगों को दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। वाणी क्या कहती है, क्या समझाती है? जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गारब हंडिए। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाते थे कि जिन लोगों को तो दिखाना चाहता है क्रोध में, अहंकार में, उन लोगों ने रहना नहीं है कुछ समय बाद। जिस पर क्रोध आया है, जिसे दिखाना चाहता है, उसने भी नहीं रहना है, मर जाना है। और तूने भी नहीं रहना, तूने भी मर जाना है। जब ना देखने वाले ने रहना है, ना दिखाने वाले ने रहना है, जिसको दिखाना है उसने भी नहीं रहना, तो किस बात का अहंकार करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब 25 साल 50 साल बाद कोई याद करेगा कि यहां पर क्या हुआ था? चैप्टर क्लोज। घरों में जाओ, 3-4 तस्वीरें लगी हो ना दादा परदादा के, बच्चे से नाम पूछो तो उसे परदादा का नाम तक नहीं पता होता। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ही अपने दादा का नाम नहीं पता, अगर मैं सोचने बैठूं तो मुझे याद नहीं आएगा। कौन याद रखता है बातें? हम अपने अहंकार को लेकर, अपने क्रोध को लेकर अपने को ही तकलीफ देते हैं, अपने को ही। लाभ कोई नहीं होता। जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गारब हंडी है। तो क्या करें? गुरु साहब जी फरमाते हैं, मंदा किसे ना आखिए पर अखर एहो बुझिए। कहते हैं सारा ज्ञान, सारी बाणी, सारी जिंदगी, सारा गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ ले, जितने मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, एक अक्षर मन में बसा ले, क्या कि मंदा किसे ना आखिए। इतना ज्ञान सिर्फ मन में बसा ले, इतना ज्ञान तुझे हो जाए ना कि बुरा कोई नहीं, मंदा किसे ना आखिए। पढ़ पढ़ अक्षर एहो बुझिए, सिर्फ ये एक अक्षर बूझ ले, समझ ले, जान ले, तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा रहना नाही ऐत जग तक कायत गारब हंडिए, मंदा किसे ना आखिए पर अक्षर एहो बुझिए। फिर मुंह रखे नाल ना लुझिए। पातशाह समझाते हैं, जो आदमी अपने मुंह को आगे रखे, मूर्ख किसे कहते हैं? जो अपने मुंह को आगे रखे, बुद्धि को पीछे, बोले पहले सोचे बाद में, ऐसे आदमी से दूर रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आदमी बोले पहले सोचे बाद में, उसे कहते हैं मूर्ख। जो मुंह को आगे रखे, मुंह रख, अपने मुंह को आगे रखता है, बुद्धि को पीछे रखता है, उसे कहते हैं मूर्ख। ऐसे आदमी से पातशाह कहते हैं उलझ मत, दूर हो जा। एक ही बात, मंदा
किसे ना आखिए, सारे बोलिए मंदा मंदा। आइए 2 मिनट ये भी गा लें हम। मंदा किसे ना किए, 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 मंदा किसे ना किए। पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। ओ मंदा किसे ना किए, 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 मंदा किसे ना किए। मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए, बुझिए पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, चंगे बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए, नानक तारे सोए। मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के मुखियों ने क्रोध पे कंट्रोल करने पर खास जोर दिया है। पोप अपनी किताब में लिखते हैं कि क्रोधी होने का मतलब एक ही है कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रोधी होने का मतलब एक ही है कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। कैसे? मानो किसी की दुकान है, नौकर कोई गलती कर दे, नुकसान कर दे, अब मालिक उसे क्रोध में चिल्ला रहा है, तो बीपी किसका बढ़ रहा है? नौकर का कि मालिक का? मालिक का। नुकसान किसका हो रहा है? सजा किसे मिल रही है? गलती की नौकर ने, सजा मिल रही है मालिक को। अब इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी तो तकलीफ किसकी बढ़ेगी? मालिक की। इसलिए कहते थे कि जिस पे गुस्सा हो रहा होता है ना, जो गुस्सा खा रहा होता है, जो क्रोध झेल रहा होता है, तरस उस पे मत किया करो, तरस उस पे किया करो जो क्रोध कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मंदा किसे ना किए, 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 ओ मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। कन्फ्यूजिस, राइटर का नाम लिखा हुआ है कन्फ्यूजिस। लिखते हैं जब भी क्रोध पैदा होने लगे, पता चल रहा है कि क्रोध आ रहा है अब, तो कहते थे 2 मिनट रुककर विचार कर लिया करो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। 2 मिनट अगर इंसान उस वक्त रुक जाए, विचार कर ले कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो अनहोनी टल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी के वचन मेरे घर में लिखे हुए हैं एक लकड़ी के ऊपर, कि निम्रता रखने से विपत्ता का समा टल जाता है।
भाव एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं। निम्रता, एक आदमी क्रोध में कुछ कह रहा है, दूसरा अगर निम्रता रख ले तो विपत्ता का समय टल जाता है। अगर वो भी जवाब दे दे तो आगे चल के हाथ पैर ही चलेंगे, विपत्ता बढ़ जाएगी। विपत्ता का समय टल सकता है अगर सामने वाला एक आदमी भी निम्रता रख ले। तो बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन के निम्रता रखने से विपत्ता का समय टल जाता है। ओ मंदा की सेना किए, 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 मंदा की सेना किए। बाबा अनंत सिंह जी से किसी ने सवाल किया कि पातशाह, पुराने समय में तप क्या होता था? पुराने जमाने में जो युग बीत गए हैं, तप का बड़ा महत्व था, लोग तप करते थे। तप किसे कहते हैं और कल युग में तप क्या है? बाबा अनंत सिंह जी ने समझाया तप क्या होता है। पिछले युगों में तप का बड़ा महत्व था, गुरबानी भी इस बात को प्रमाणित करती है। तप क्या होता था कि अत की गर्मी के दिन है, जो योगी होते थे अपने आसपास आग जलाकर उसके अंदर बैठ जाते थे, अपने शरीर को तपाते थे। तप का भाव होता था अपने शरीर को तकलीफ देना। पुराने जमाने में इसका महत्व था, पिछले जमाने में इसे कहते हैं तप करना। कोई जब अत की ठंड हो तो ठंडे पानी से अपने ऊपर पानी गिराए जाना, ये सब तप करते थे ऋषि मुनि। बर्फ में जाकर बैठ जाते थे, अपने शरीर को तकलीफ देते थे। बारिश में भीग भीग कर सिमरन करते थे, अपने शरीर को तकलीफ देकर। इसे कहते हैं तप। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कहने लगे, ये तो हो गया पिछले युगों का तप। कल युग का तप पता क्या है? तपा सिर तप है, किसी के कड़वे वचनों को सहन कर लेना, उसका जवाब न देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे वही फल मिल जाएगा कल युग में। पर अगर ये अवस्था बन जाए क्या कि कोई सामने वाला क्रोध करे, कड़वे वचन बोले, उसको सह ले, जवाब देने की समर्था हो। देखिए, एक होता है मजबूरी में सहना, कि पता है कि इसके आगे जोर चलेगा नहीं, पता है कि जवाब दे सकते हैं, पता है कि 1 का 10 कर सकते हैं, पर फिर भी सह लेना, जवाब ना देना। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन तपा सिर तप है, किसी के कड़वे वचन सह लेना। और हमारे सिख इतिहास में, गुरु के इतिहास में देखेंगे तो ये पैर पैर पर ये घटना सामने आ जाती है। एक घटना श्रवण कीजिए। जब भाई दातू जी को पता चला कि गुरु अंगद देव जी ने, दूसरे गुरु नानक ने गुरु अमरदास जी को तीसरा गुरु नानक बना दिया है, गुरगद्दी सौंप दी है, तो क्रोध आ गया कि गद्दी के हकदार तो हम थे। क्रोध आ गया, क्रोध से चल पड़े। संगत बैठी है, हजारों की तादाद में गुरु अमरदास जी बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। तीसरे गुरु नानक भाई दातू जी आए, जोर से लात दे मारी तीसरे गुरु नानक को। प्यार से बोले धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी को जोर से लात दे मारी, गुरु अमरदास जी गिर गए। वृद्ध अवस्था गुरु अमरदास जी गिर गए। पर क्या किया? उठे, उनके पैर चरण दबाने लग गए, कहने लगे कि हमारा शरीर वृद्ध हो चुका है, सख्त हो चुका है, हमारी हड्डियां बाहर निकल आई हैं, कहीं आपके चरणों को चोट न लग गई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था हमारे गुरुओं की है। मैं मानता हूं साथ संगत जी, हमारी अवस्था होनी लगभग नामुमकिन है कल युग में। पर ये सुनने का, महापुरुष कहते थे, ये सुनने का, सुनाने का एक लाभ ये हो जाता है कि 5-10% आदमी जरूर उस पर असर करता है। ठीक है, हम पूरी तरह से काबू नहीं कर पाएंगे, गुरु मेहर करे शायद वो भी हो जाए, पर कुछ % तो चलेंगे। सत्संगत में बैठकर सुना होगा, व्यर्थ कैसे जाएगा। मैं एक बार गया सिंह साहब के पास, दरबार साहब के, जब क्यों मुर्गी मारे सीढ़ी निकालनी थी ना, ज्ञानी जसविंदर सिंह जी के पास गया। मैंने कहा ज्ञानी जी, मैं जो सीढ़ी निकालने जा रहा हूँ इतनी मगजमारी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसके खिलाफ है, मांस खाने के खिलाफ मैं सीढ़ी निकालने जा रहा हूँ, क्या लोगों पर असर होगा? निकालूं कि नहीं निकालूं? इतने लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ, ताने सुन रहा हूँ।
तो कहने लगे क्यों नहीं असर होगा? क्या धूप का असर नहीं है, शरीर गर्म नहीं हो जाता? क्या सर्दी का असर नहीं है, शरीर ठंडा नहीं हो जाता? ये तो वाणी है, गुरबाणी अपना असर जरूर दिखाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी भरोसे से मुझे अपने आप पे कौन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी को कहूंगा उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, पर गुरबाणी पे ताकत पे मुझे भरोसा है कि ये जो गुरबाणी हम गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका एक अपना असर है। कोई मन लगा के पढ़ लेगा, गा लेगा, समझ लेगा तो उसकी जिंदगी में जरूर गुरु नानक कृपा करेगा, क्रोध पे कंट्रोल आ जाएगा। आइए 2 पंक्तियां पढ़े। मंदा किसे ना किए, 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 मंदा किसे ना किए। पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए, अखर एहो बुझिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। ओ मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। अब क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध समझ लिया, क्रोध क्या है, करने से क्या होता है, कंट्रोल करेंगे तो कितनी कृपा हो जाएगी। क्रोध आता क्यों है? उसके पीछे एक ही कारण है साथ ही, ये जबान। महापुरुषों के वचन और वाणी इस बात को प्रमाणित करती है कि जब भी कोई लड़ाई हुई है उसके पीछे कारण ये रसना, ये जबान ही है। द्रौपदी ने सिर्फ इतना कह दिया था, अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत का युद्ध हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि रसना पर काबू नहीं रखा, मजाक में कह दिया। तो महापुरुष समझाया करते थे, ज्यादा करके क्रोध उन लोगों को आता है जो ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा और बेमतलब की बातें बोलते हैं। महापुरुषों के वचन कि जहां पर 2 अक्षरों से काम चलता हो, तीसरा मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मिलते हैं अपनी बात को समझाने के लिए आधा आधा घंटा बोलते हैं, दिमाग खा जाते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट बात होनी चाहिए, थोड़ा बोलो पर सही बोलो, और सही बोल ही वो सकता है जो थोड़ा बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है, श्रवण कीजिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। सवाल किया किसी ने कि क्या बोले जिसे बोलने से ये मन गुरु के चरणों से जुड़ा रहे। कितना बोले, क्या बोले? तो कबीर जी समझाते हैं, श्रवण कीजिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए। अगर कोई संत मिले, ध्यान देना, एक एक पंक्ति में बहुत गहरा अर्थ है। संत मिले किछ सुनिए कहिए। पहले सुनिए, पहले कहिए नहीं। संत मिले किछ सुनिए, फिर जब वो पूछे तब कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत। पता चल गया है कि ये फालतू आदमी है, फालतू बातें करेगा, बेमतलब की बातें करेगा, मस्त कर रही है। कबीर जी कहते हैं, संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। आगे, संतन स्यो बोले उपकारी। संतन से बातें करेगा, संतों से बात करेगा तो तेरे में ये गुण आ जाएगा कि तू उपकारी बन जाएगा। संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले झक मारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, श्रवण कीजिए। संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले झक मारी।
संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चक मारी। कहे कबीर छूछा घट बोले, परया होए सो कब हूं न डोले। कहे कबीर छूछा घट बोले। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टैंकर रोड पे चलते हैं ना, टैंकर रोड पे चलते हैं, डीजल लेके जाते हैं, पेट्रोल लेके जाते हैं, कई लोगों को शायद पता नहीं है। अगर इनसे कहो ना कि आधा टैंकर भरकर ले जाओ तो भाड़ा ज्यादा मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर पूरा टैंकर भरो तो भाड़ा कम लेते हैं। उल्टा हिसाब है, वजन कम भाड़ा ज्यादा। क्यों? अगर आधा खाली है तो जब ब्रेक मारते हैं ना तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ है वो एक तरफ हो जाता है, डोल जाती है, पूरी गाड़ी उल्टने का डर होता है। बानी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। कहे कबीर छूछा घट बोले, भरया होए सो कब हूं ना डोले। कि जो छूछा फालतू बातें कम करते हैं उनके अंदर गुण भर जाते हैं, और जिनके अंदर गुण भर जाते हैं वो फिर कभी डोलते नहीं, और जो खाली हैं गुणों से वो डोलते रहते हैं। इसीलिए कम बोलो। सारे झगड़े, सारे क्रोध, सारी लड़ाई की एक ही जड़ है, फालतू बोलना। कहे कबीर छूछा घट बोले, परया होए सो कब हूं न डोले। मंदा की सेना किए, मंदा की सेना किए, सारे मंदा की सेना किए, मंदा की सेना किए। बड़े अखरे हो गुजिए, बड़े अखर ए 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 हो गुजिए। बड़े अखर ए हो मंदा की सेना किए, मंदा की सेना किए, मंदा की सेना किए, मंदा की सेना किए। समा हो गया है, प्रकरण तो बहुत बड़ा है। एक छोटी सी बात कह के समाप्ति करूंगा। ये जो हम यहां पर सुनते हैं, जो कुछ भी कथा में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, हम पर पूरा असर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? हम इन बातों को समय पर भूल क्यों जाते हैं? उसके पीछे एक बड़ा बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। छोटी सी साखी सुनिए, कारण समझ में आ जाएगा। एक राजा के स्वभाव था कि उसके राज्य में जो भी महापुरुष आए उसे अपने राज्य महल में बुलाता था, सत्कार करता था, भोजन खिलाता था, सेवा करता था, और आखिर में कहता था कोई ज्ञान दो, कोई ज्ञान दो, कोई सुमत दो। तो सारे महापुरुष आते, प्रवचन करते, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, जैसे मैं बोलता रहता हूँ वो भी बोलते रहे, और राजा पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा, वैसा का वैसा ही। माफी देना, मैंने कहा महापुरुष आते, मैं महापुरुष नहीं हूं। फिर से बता दूं, मैं महामूर्ख ही हूं, महापुरुष नहीं। एक दिन एक महापुरुष आए उस राज्य में, राजा ले आया उन्हें पकड़कर। महलों में ले आया, आदर सत्कार किया, भोजन छकाया, कहने लगा कोई सुमत बख्शो। वो महापुरुष बहुत ही कमाई वाले थे, बहुत ही कमाई वाले सच्चे महापुरुष थे। कहने लगे राजन, तू मुफ्त में ज्ञान चाहता है? मुफ्त में? मैं मुफ्त में ज्ञान नहीं देता। राजा कहने लगा आप कहो आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं उतनी भेंटा दूंगा, मुझे ज्ञान दीजिए। महापुरुष कहने लगे एक ज्ञान की बात बताने का मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, 1 लाख। राजा हैरान हुआ, इतना धन? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा होती हैं, पर इतने महल के, इतने मंत्रियों के बीच में वो कुछ कह ना सका। मंत्रियों से कहा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लाओ। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लाके उसे दी गई महापुरुषों को। अब महापुरुष कहने लगे सुन ज्ञान की बात, कि जब क्रोध आए ना तो कुछ करने से पहले 2 बार विचार कर लेना। जब क्रोध आए ना तो कोई कदम उठाने से पहले 2 बार विचार कर लेना, फिर
जो करना हो करना। राजा कहने लगा बस इतनी सी बात? महापुरुष कहने लगे हाँ, और क्या ज्ञान चाहिए तुझे? ये कोई छोटा मोटा ज्ञान थोड़ा, क्रोध आए तो 2 बार सोच लो। राजा बड़ा परेशान हुआ, कुछ बोल सका नहीं। महापुरुष चले गए, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले गया और बोल के क्या गया कि क्रोध आए तो 2 बार सोच लेना, ये तो पता ही है हमें। कई महीने बीत गए पर राजा के दिमाग से ये बात निकल नहीं रही। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले गया और बोल के सिर्फ इतना गया है कि क्रोध आए तो 2 बार विचार कर लेना। अब राजा कुछ दिनों के लिए बाहर गया, वापस आया। रात के समय वापस आया, क्या देखता है उसकी रानी किसी गैर मर्द के साथ पलंग पर सो रही है। राजा था, गुस्सा आ गया, तलवार निकाली, जैसे ही चलाने लगा याद आ गया महापुरुषों ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहा था कि क्रोध आए तो 2 बार विचार कर लेना। इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले गया, देखो तो सही क्या मतलब है इस बात का। तलवार अपने म्यान में डाली, रानी को उठाया। रानी देख के घबराई नहीं, खुश हुई, कहने लगी महाराज आप आ गए, पहचानो ये कौन है? राजा कहने लगा मैं नहीं जानता कौन है, तू बता ये कौन है? कहने लगा ये आपका पुत्र। पुराने जमाने में लोग छोटे बच्चों को भेज देते गुरुकुल में पढ़ने, बड़ा होकर वापस आता था, राजा नहीं पहचानता था। कहने लगा ये कल ही वापस आया है, आपको याद करके उदास था तो मैंने अपने साथ सुला लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया, अगर मैं क्रोध में तलवार चला देता सारी जिंदगी मेरी दुखों से भर जाती, पश्चाताप में जलता रहता। धन हो उन महापुरुषों का जिन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली और ये ज्ञान दिया। अब जरा यहां पर बात रोकिए, हम लोग को ना मुफ्त में ज्ञान लेने की आदत पड़ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने सोचा जब ये कथा मैं प्रकरण बना रहा था, हम लोग फिल्म में जाते हैं तो 500 रुपए की टिकट खर्च करके जाते हैं, 1000 रुपए ऐसे ही खर्च कर आते हैं। चलो गरीब आदमी होगा वो भी 100-200 तो खर्च करेगा ही, 1000-2000। यहाँ पे बड़े बड़े बैठे हैं, छोटे से छोटा भी बैठा है, गुरु के दर में हर प्रकार के लोग हैं। पर अगर हम सच में यहाँ पर अगर टिकट रख दें 500 रुपए की कि आओ तो बताऊं कि क्रोध पे कंट्रोल कैसे करना है, तो कोई खर्चेगा? सब ना कर रहे हैं। आइए अब 2 पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति, और उसमें यह बताया जाएगा क्रोध पे कंट्रोल कैसे करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि प्रकरण काफी लंबा था, काफी छूट गया है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। सारे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। ओ हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक बुरा हम नहीं थे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। प्रणवत नानक तारे सो, प्रणवत नानक तारे सो। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मेरी माना तू बेअत तेरा
बख्श कथा मैं माना तू तेरा अंत न जाना तू तेरा अंत न जाना पापी
कट जाए 84 वारे गुरु सचके विसर नाही दाता बख्शो सजना दा प्यार नाम जपाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना सच्चे रखना रखना संग तो बचाए हर चीज रखना गले माल लागे रखना संग तो बचा के हर चीज रखना गले माल लागे हर दम बंदगी करा तेरी हाजिरी करा जब तक प्राणा तू बेअंत तेरा अंत ना जाना सच्ची मेरी बता मेरी सच्चे मेरी बता मेरी माया तुम्हें तेरा अंत ना जाना तुम्हें अंत तेरा अंत ना जाना तुम्हें अंत तेरा अंत ना जाना पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिए चुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा
यमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह करख करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान महादेव को कह तु सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कै कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहो रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा समट पे संकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव अब रक्षा मेरी तुम करो असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर इनके दुष्ट दुखत हव मरे उर्ख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट संजाय निहारो आके तापत नगमो हरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोग ते ले बचाए खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली मोहल्ला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिदे सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द तेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया कर सांस सुख मन आए
ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿੱਠੋ ਦਿਸਿਆ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਰਟੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਆਦਿਕ ਕਰੇ ਨਦਵਾਜੇ ਮਨ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਟੇ ਜਾਨੀ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ ਜਿਸ ਰਾਗ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ गुरु जी शुक्राना आपका कैसे करूं सब कुछ देते हो और कुछ नहीं लेते सच्चे दिल से जो तुमको चाहे उसकी झोली भर देते हो शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी हाँ गुरु जी सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी
झूठों को सुन लेते तुम हो, ऐसे हो हमसे जुड़े, बिन मांगे ही सबकी झोली भर दी। अपने प्यार में जिंदगी सींच दी। तू है नूर, तू है नूर, तू है नूर जिसका चंदा दीवाना। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। पास बुलाया, चरणों से लगाया, अपने हृदय में बसाया है। पास बुलाया, चरणों से लगाया, अपने हृदय में बसाया। हाथ पकड़ा है अब छोड़ना न गुरु जी, ओ हाथ पकड़ा है अब छोड़ना न गुरु जी। अब तो तुम बिन, अब तो तुम बिन हमको जीना नहीं है मेरे प्यारे गुरु जी। ओ गुरु जी, ओ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 ओ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। शिव जी सदा सदा सहाय। ॐ 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 नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।